गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। करंट डेंसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डेंसिटी निकालना हो, करंट डेंसिटी निकालना हो, तो हम लोग करंट डिवाइडेड बाय एरिया से करंट डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्ट टाइम जो हमारा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आया था वो आया था J equals to I divided by area. If we consider a small area, then J is equal to I, यानी a small I di divided by di, J equal to di divided by dA if we consider a small area. Students, from here we can find the value of di is equal to J into dA, J into dA. This formula is valid only when the angle between I and area vector is 0 degree. This means when current is flow normally through any cross section, and this can be shown as this is the area dA and the current is flowing di in such a way. So here angle between dA and I equal to 0 degree. But if the angle between di and area vector is theta, so we can write in such a way, this is the area dA and the current is flowing in this way di, and the angle between I and dA is theta. For maximum current flowing through area of cross section, we have to take a component normal to the direction of current flow, which is nothing but dA cos theta. So J can be defined as J equal to di divided by dA cos theta. From here the value of di can be find out. Di equals to J into dA cos theta, and we can write J dA cos theta as J vector dot dA vector, and di equals to J vector dot di vector. For complete I, we have to integrate this expression, and this expression becomes I equal to integration J dot dA. Students, this is the formula used when current density is given and area vector is given, and from that area how much amount of current is flowing we can easily find out by using this formula. Students, if J is constant, then J can be taken outside the integration sign, and the value of I equal to J integration dA, and the value of dA is nothing but A, so I equals to J into A. But students, if J
depends on some position, we can say non-uniform. If J is non-uniform, then the value of I will be J dot dA. We can use J dot dA, which is equal to J dA cos theta. We have to put value of theta, and we have to take a small cross sectional area and uniform density and integrate it over its limit. Then we can find the value of current which is passing through any cross section area. Students, we have given some question. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सपोज कीजिए जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है J इक्वल टू के आर स्क्वायर है, यानी द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कंडक्टर. And the radius of conductor varies in such a way that its lower point is 0.9 r square, 0.9 r to capital R. एस्टूडेंट्स, करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या दिया हुआ है? k इंटू आर स्क्वायर, एंड जो r की वैल्यू वेरी हो रहा है वो 0.9 r to capital R. Then we have to find current flowing through this cross section, यानी current flowing through this cross section. स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है? J के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R दिया हुआ है K इंटू आर स्क्वायर, एंड जो R की वैल्यू वेरी कर रहा है 0.9 R2 कैपिटल R. तो हमें करंट की वैल्यू निकालना है कि कितना करंट इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा. स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जो I के वैल्यू होता है वह इंटीग्रेशन J डॉट dA होता है. स्टूडेंट्स, वी कैन सी बाय यूजिंग डायग्राम. This is nothing but radius R, this is center, and from here current I is flowing, and the value of current density is given by J into R square. यानी from here से, यानी R दूरी पे हमने क्या किया? एक क्रॉस सेक्शन यानी स्मॉल एरिया हमने क्या किया? कंसिडर किया. यानी स्मॉल r पे हमने एक dr थिकनेस का एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया. And the direction of area vector is in this way, and the angle between I and dA is nothing but theta equal to 0 degree. So we can write integration J dA cos theta, and theta is 0 degree, so cos 0 is 1, so equation becomes integration J dA, and the value of dA यानी small cross section is nothing but 2 pi r into dr. This is the length and this is thickness, so area becomes 2 pi r into dr. Students, here we can put the value of J which is equal to k into r square into dA, and dA का वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग पुट कर सकते हैं 2 pi r into dr. So this is integration k r square into 2 pi r into dr.
ओके स्टूडेंट्स, एंड द कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू के, इंटीग्रेशन के अंदर हो गया आर क्यू इंटू डी आर, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0.9 आर से कैपिटल आर इज द अपर लिमिट. सो द इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यू इज नथिंग बट आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी 2 पाई इंटू के, इंटीग्रेशन हो गया आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 and 0.9 r to capital R. So students, after simplification we can find the value of I, which is equal to I is equal to 2 pi into k into divided by 4 into r to the power 4, and upper limit हम लोग पुट करते हैं r स्क्वायर, सॉरी r to the power 4, एंड लोअर लिमिट को पुट करते हैं 0.9 इंटू आर टू द पावर 4, आर इंटू टू द पावर 4. सो स्टूडेंट्स, 2 to 2 कैंसिल आउट, पाई के डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर टू द पावर 4 माइनस 0.9 को लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाई 10 इंटू आर टू द पावर 4. वी कैन राइट पाई के डिवाइडेड बाई 2 into r to the power 4 minus 81 divided by 100 into r to the power 4, and the LCM is 100, so we can write pi k divided by 2 into 100 r square minus 81 r to the power 4, this is 4 divided by 100. So we can write LCM हो गया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 19 पाई k r to the power 4 divided by 200, this is the value of I. Okay students, यानी इतना एम्पियर. Okay students, next question we have, students, the value of current density in a cylindrical wire of radius r is given as J is equal to J naught into x divided by r minus 1 when x lies between 0 to r by 2, and the value of current density is equal to J naught x by r when x lie between r by 2 to capital R. एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल वायर, जिसकी रेडियस r है, एंड उसमें करंट डेंसिटी की वैल्यू इस तरह से वेरी कर रही है कि जो x की वैल्यू अगर 0 से r बाई 2 हो तो करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, J नॉट x बाई r माइनस 1, एंड जब x की वैल्यू r बाई 2 से r हो तो जो करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी J नॉट x डिवाइडेड बाई r होगी. r इज़ द रेडियस, r क्या है, रेडियस है ऑफ cylindrical wire. Okay students, and we have to find current flowing through the wire. We have to find current flowing through the wire, Okay students, the formula for finding the current in terms of current density is equal to I is equals to integration J dot dA. स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए एक कंडक्टर है, इसकी सेंटर से, दिस इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0, सेंटर से x दूरी पे हमने क्या किया, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया एट x दूरी पे, जिसकी थिकनेस कितना हो, dx हो. द एरिया ऑफ दिस स्मॉल क्रॉस सेक्शन इज dA इज नथिंग बट 2 पाई x इंटू dx. जब x की वैल्यू 0 से r बाई 2 हो तो उसकी करंट डेंसिटी हमें गिवन है
एंड x की वैल्यू जब r/2 से r तक हो तो उसकी करंट डेंसिटी हमें गिवन है। सो स्टूडेंट्स, सपोज कि दिस इज द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है इस तरह से। द एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन j/dA cos 0 and cos 0 is 1, so equation becomes integration j/dA and this is the value of I. So students, this equation according to the question इसको दो पार्ट में लिखा जा सकता है। when limit 0 to r/2 हो तो j की वैल्यू होगा j0 इंटू एक्स डिवाइड बाई r माइनस 1 इंटू एरिया, और एरिया इक्वल टू 2πx इंटू डी एक्स, एंड सेकेंड लिमिट प्लस जब लिमिट r/2 से r हो तो जो j की वैल्यू होगा j0 x डिवाइडेड बाई r इंटू 2πx इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we can find the value of current. So students, we can find the value of I here 0 to r/2, जो हमारा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, j0 2π विच इज़ कांस्टेंट, और इनसाइड हमारा इंटीग्रेशन साइन क्या बच गया, x² बाई r माइनस 1 इंटू 1x इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर प्लस कांस्टेंट हो गया j0 2π डिवाइडेड बाई r, कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर हमारा बच गया x² इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आर लिमिट है r/2 टू r। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन फाइंड द वैल्यू इन सच अ वे, j0 इंटू 2π, इंटीग्रेशन हो सकता है इसका r² का r⁻³ डिवाइड बाई 3 इंटू r माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2, we can put the limit from 0 to r/2 plus j0 2π divided by r, and the integration of x² equal to x³ divided by 3 and limit r/2 to r। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं r/2, दिस इज j0 2π, r/2 पुट करते हैं ये r⁻³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू r इंटू 8 माइनस अपर लिमिट इसमें पुट करते हैं r⁻4 यानी r⁻2 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू। फिर प्लस j0 2π डिवाइड बाई r इंटू अपर लिमिट पुट करते हैं तो r⁻³ बाई 3, और जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो आ जाएगा r⁻³ डिवाइड बाई ये हो जाएगा 8 3 24। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या लिखते हैं, j0 2π एलसीएम हो जाएगा 8 है यहाँ, और यहाँ हो गया 24, तो एलसीएम हो गया 24 r। सो दिस इज r³ माइनस 3 r² यानी r⁻³ लिमिट प्लस j0 2π डिवाइडेड बाई r इंटू 24 एलसीएम हो जाएगा, दिस इज 3 r³ 8 r³ माइनस r³। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 r³ से 12 r³ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर हमारा r² डिवाइडेड बाई 12, r² डिवाइडेड बाई 12। सो I इक्वल टू j इंटू 2π, j0 इंटू 2π, यह आ जाएगा r² डिवाइड बाई 12। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, r² डिवाइडेड बाई 12 प्लस, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, प्लस सेकेंड से हमारा आ जाएगा 8 यानी 7 यानी j0 2π इंटू 7 r² डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 24।
4। स्टूडेंट्स हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं जे नॉट 2 पाई, कॉमन निकाल सकते हैं आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, तो अंदर बच जाएगा 7/2 माइनस का 1। सो आफ्टर ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बचा 6। तो जे नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 6 इंटू 5/2। सो जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आया, जे नॉट 5 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू आया किसका, आई का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। जो हमारा आई का वैल्यू आया जे नॉट 5 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सपोज कीजिए एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर हमें गिवन है, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, इससे जो ये मान लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। स्टूडेंट्स हमें कंसीडर करना है I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो I की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स स्टडी करंट, स्टडी करंट है। स्टूडेंट्स हमने दो क्रॉस सेक्शन लिया, दिस इज क्रॉस सेक्शन A, यानी इसको हमने नाम दिया A, एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन B। हमने दो क्रॉस सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन A एंड क्रॉस सेक्शन B। हमें कमेंट करना है, कमेंट ऑन फर्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट A एंड B, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट A एंड B, एंड सेकेंड हमें कमेंट करना है करंट डेंसिटी एट A एंड B, करंट डेंसिटी एंड A एंड B। एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, इस नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में करंट जो है फ्लो कर रहा है कांस्टेंट करंट, यानी स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। हमने दो क्रॉस सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन A एंड क्रॉस सेक्शन B, एंड हमने कमेंट करना है VD एट A एंड B एंड J एट A एंड B। स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं द क्रॉस सेक्शन ऑफ A इज ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ B। सो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया पॉइंट A का ग्रेटर है क्रॉस सेक्शन एरिया पॉइंट B से। सो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो करंट की वैल्यू होती है I इक्वल टू थ्रू एनी कंडक्टर I इक्वल टू NEA VD। सो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाई N इंटू A इक्वल टू A इंटू VD। स्टूडेंट्स हेयर इन क्वेश्चन I is constant, number of electrons per unit volume is constant, and the value of electron is constant. So this value is constant, so we can write A into VD equal to constant, A into VD equal to constant. Students, the product of area and VD equal to constant. If area increase then VD is decrease, and if area is decrease then VD is increase. Here area at point A is greater than area at point B, so this implies VD at A is less than VD at B. Okay students, so कि एरिया
एंड वी का जो प्रोडक्ट होना चाहिए था वो कांस्टेंट होना चाहिए. सो वी डी एट ए इज लेस दैन वी डी एट बी बिकॉज एरिया एट ए इज ग्रेटर दैन एरिया एट बी. ओके स्टूडेंट्स. फॉर सेकेंड क्वेश्चन यानी कमेंट ऑन जे, वी नो डैट I equals to NEA VD. If we divide both sides by A get cancel out, यानी I upon A is nothing but current density J, and J की वैल्यू आ गया NEVD. NEVD. Students, here N is constant and E is constant, so J is directly proportional to VD. If VD की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है देन करंट डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीज कर जाएगा. एंड इफ़ वी डी डिक्रीज करता है देन द वैल्यू ऑफ जे यानी करंट डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. सो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि एरिया एट पॉइंट ए ज़्यादा है एरिया एट बी से. सो करेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी एट पॉइंट ए स्मॉलर होगा एट बी. सो वी डी एट ए is smaller than VD at B. This implies that current density at A is smaller than current density at B. Students, इस तरीके से हमने क्या किया, कमेंट किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ 2 point and current density at a 2 point. Okay students. स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हैं जिसे आपको बनाना है और इसके आंसर को कमेंट में पोस्ट करना है. आप क्वेश्चन लिख सकते हैं. क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? A steady current passes through a cylindrical conductor A steady current passes through a cylindrical conductor. Full stop. Is there an electric field inside the conductor? Is there an electric field inside the conductor? Inside द कंडक्टर. ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा. अगर किसी कंडक्टर से सिलेंड्रिकल कंडक्टर से अगर स्टेडी करंट फ्लो कर रहा हो तो क्या इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमें लिखना है, इसका आंसर देना है. सेकेंड क्वेश्चन आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इफ़ 0.6 mole, if 0.6 mole of electron flows through a wire in 45 minutes, then what are number 1 total charge that passes through the wire, total charge that passes through the wire, and number B
मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर लिखकर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।